Hello students, I welcome you to Success CD's Education. My name is Ruchika. Here I have the current affairs. These are in the multiple choice question format for the month of February 2017. This is the second part of the video. We'll begin from question number 26 till question number 50. So let's get started. Let us see question number 26. The first strategic dialogue between India and China was co-chaired by which two persons? हमें उन दो लोगों का नाम बताना है जिन्होंने इस डायलॉग को चेयर किया था. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है एस जयशंकर एंड जैंग येसुई. इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. The first strategic dialogue between India and China was held in Beijing, that is the capital of China. This meeting was co-chaired by India's Foreign Secretary S. Jaishankar. He is the one. And China's Executive Vice Foreign Minister Zhang Yesui. इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं. China and India held the dialogue to resolve differences over first topic. The main topic for this dialogue was Beijing's reluctance to support nuclear suppliers group, that is NSG, bid, as well as, and the second topic for this dialogue was UN ban on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. Let us move on to the next question number 27. Who has sworn in as the Chief Minister of Nagaland? The answer is Shuhozili Lezitsu. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. Shuhozili Lezitsu was sworn in as the 17th Chief Minister of Nagaland. He was administered the oath of office and secrecy by the Governor P.B. Acharya at a ceremony in the state capital Kohima. He succeeds, यानी कि इनसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? T.R. Ziliang, who had resigned as the chief minister. इन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. In which state was the National Biodiversity Congress held? Answer is Kerala. The National Biodiversity Congress, it is also called NBC, for the year 2017 was held in Thiruvananthapuram, which is the capital of Kerala. यहाँ पर आप देख सकते हैं. This is Kerala. The theme of this year was mainstreaming biodiversity for sustainable development. This is also important. आपको क्वेश्चन के रूप में ये भी पूछा जा सकता है. Members of academic and research institutions, civil society, biodiversity management committees, NGOs, farmers, students, corporates participated in the event. Let us see next question number 29. When is the International Mother Language Day celebrated? पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? आंसर है February 21. The International Mother Language Day was observed across the world on 21st February to promote awareness of linguistic multilingualism and cultural diversity. क्या एम होता है इस दिन को मनाने का? अवेयरनेस क्रिएट करना भाषा के बारे में. This year it is the 17th anniversary of this day. और कहा जाता है कि मदर लैंग्वेज ऑफ वन कंट्री इज द साइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ दैट कंट्री. किसी भी देश की जो मातृभाषा है वो उस देश के लोगों की स्वाधीनता की निशानी है. 2017 का थीम था टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर्स थ्रू मल्टीलिंगुअल एजुकेशन. इसको याद कर लीजिए. कमिट टू मेमोरी. दिस कुड बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. The International Mother Language Day was instituted by the UN General Assembly by a resolution in the year 2017. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. What is the theme of the National Science Day 2017? भारत में हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है. 2017 में इसकी थीम क्या थी? इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स. इसकी कुछ और जानकारी देखते हैं. द नेशनल साइंस डे NSD
इसको हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी कहते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन February 28 इन इंडिया. 2017 की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स. द फर्स्ट नेशनल साइंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 Feb 1987. इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हिस्टोरिकल डिस्कवरी हुई थी ऑफ द रमन इफेक्ट. रमन इफेक्ट किन्होंने डिस्कवर किया था? इंडिया के एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन. सीवी रमन भी कहा जाता है इनको. इन्होंने February 28, 1928 को ये रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था और इसी दिन हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है. इनकी इस डिस्कवरी को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी दिया गया था इन द ईयर 1930. ये आप देख सकते हैं, ये है सर सीवी रमन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हेलीपोर्ट? आप सबने एयरपोर्ट सुना होगा, हमें यहाँ पर बताना है भारत का पहला हेलीपोर्ट जहां पर हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं स्पेशली. ये कहां पर है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली. इसकी कुछ और जानकारी देखते हैं. इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड हेलीपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड एट रोहिणी इन न्यू दिल्ली. दिस हेलीपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय द पवन हल्स लिमिटेड. ये कंपनी है जो हेलीकॉप्टर्स बनाती है. इट इज स्प्रेड ओवर मोर देन 25 एकर्स. इतने एरिया में ये हेलीपोर्ट बनाया गया है. It consists of a terminal building having a capacity of 150 passengers along with 4 hangars जहां पर helicopters रह सकते हैं, with the parking capacity of 16 helicopters and 9 parking bays. Next question number 32. We have to name the newly appointed chairperson of NCST. The answer is Nand Kumar Sahai. Now, what is NCST? NCST stands for National Commission for Scheduled Tribes. ये है नंद कुमार सहाय. He is a senior tribal leader from छत्तीसगढ़ और ये NCST के चेयरपर्सन बन गए हैं. He succeeds यानी कि इनसे पहले NCST के चेयरपर्सन थे रामेश्वर ओरांव और इनका टेन्योर October 31, 2016 को खत्म हो गया था. नंद कुमार सहाय का टेन्योर 3 साल का रहेगा और इनका रैंक होगा जस्ट लाइक अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 33. वी हैव टू नेम द फिल्म दैट हैज वन 6 अवार्ड्स एट द 89th अकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर्स भी कहा जाता है, फॉर द ईयर 2017. 2017 में किस फिल्म ने 6 अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ला ला लैंड. इसकी और जानकारी देखते हैं. 89th अकेडमी अवार्ड, जिसे हम ऑस्कर्स भी कहते हैं, दैट वाज हेल्ड एट द डॉल्बी थिएटर इन हॉलीवुड, लॉस एंजलिस. दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस. इसे AMTAS भी कहा जाता है, विच ऑनर्स द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2017. अब देखते हैं अकेडमी अवार्ड विनर्स कौन कौन रहे. बेस्ट पिक्चर अवार्ड वॉज गिवन टू मूनलाइट. Best Actress Emma Stone for La La Land. Best Actor Casey Affleck for Manchester by the Sea. Best Director Damien Chazelle for La La Land. Best Supporting Actress Viola Davis for Fences. Best Supporting Actor Mahershala Ali for Moonlight. Best Original Screenplay Kenneth Lonergan for Manchester by the Sea. Best Adapted Screenplay Barry Jenkins and Terrell Alvin McCraney for Moonlight. Best Cinematography Linus Sandgren for La La Land. Best Original Score Justin Hurwitz for La La Land. Best Original Song Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul for La La Land. Best Sound Editing Sylvain Belmare for Arrival. Best Foreign Language Film The Salesman, it was in Irani language. Best Film Editing John Gilbert for Hacksaw Ridge. बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड गया है रॉबर्ट लेगाटो, एडम वाल्डेज, एंड्रयू आर जोन्स एंड डैन लेमन फॉर द जंगल बुक. बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन डेविड वास्को एंड सैंडी रेनॉल्ड्स वास्को फॉर ला ला लैंड. बेस्ट साउंड मिक्सिंग केविन ओकेनेल, एंडी राइट, रॉबर्ट मैकेंजी एंड पीटर ग्रेस फॉर हैक्सॉ रिज. बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म एजरा एडलमैन एंड कैरोलाइन वाटरलो.
Best Animated Feature Film, Byron Howard, Rich Moore and Clark Spencer for Zootopia. Best Animated Short Film, Alan Barillo and Mark Sondheim for Piper. Best Documentary Short or Subject, Best Documentary Short Subject, Orlando von Ensdale and Joanna Natsingera, The White Helmets. Best Live Action Short Film, Christoph Deek and Anna Udvargi Singh. Best Makeup and Hairstyling, Alessandro Bertoleggi, Giorgio Gregoni and Christopher Nelso for Suicide Squad. Best Costume Design, Colleen Atwood for Fantastic Beasts and Where to Find Them. Let us move on to next question number 34. We have to name the newly launched train for unreserved passengers by the Indian Railways. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंत्योदया एक्सप्रेस. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. Indian Railways has unveiled Antyodaya Express, which is a new train for the unreserved passengers. यानी कि आपको पहले रिजर्वेशन नहीं करानी पड़ेगी. It was unveiled by the Union Railway Minister Suresh Prabhu in New Delhi, Safdarjung Station. इस ट्रेन को लॉन्च किया है यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने. द फर्स्ट अंत्योदया एक्सप्रेस यानी कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, बिटवीन मुंबई एंड टाटा नगर. एंड द सेकेंड ट्रेन दूसरी अंत्योदया एक्सप्रेस चलेगी एर्नाकुलम से हावड़ा तक. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. द 7 न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग विच स्टार. अभी 7 नए एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं. वो किस स्टार को ऑर्बिट करते हैं, हमें उस स्टार का नाम बताना है. पहले मैं आपको बता दूं एक्सोप्लैनेट क्या होता है. जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं. इन ऑप्शंस में से उस स्टार का करेक्ट नाम है ट्रैपिस्ट-1. Astronomers from NASA, that is National Aeronautics and Space Administration, for the first time have discovered 7 new Earth-sized exoplanets that may be able to sustain life. ये कहा जाता है कि हो सकता है इन एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ हो क्योंकि इनका एनवायरनमेंट काफी अर्थ जैसा है. आप देख सकते हैं ये है हमारा सन, कितना बड़ा है, और इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्कवर्ड नया स्टार है ट्रैपिस्ट-1, ये कितना छोटा है. इसीलिए इसे एक ड्वार्फ स्टार कहा जा रहा है. इट इज अ वेरी स्मॉल स्टार. These exoplanets are orbiting dwarf star named TRAPPIST-1, which is 39 light years away. कितनी दूरी है इस स्टार की हमारे सोलर सिस्टम से? 39 light years. They could have some liquid water and may be supporting life. नासा ये कह रही है कि हो सकता है कि इन प्लैनेट्स पर पानी हो और ये लाइफ को सस्टेन सपोर्ट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 36. Where is the Arun hydropower project located? The answer is Nepal. इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोजेक्ट में, विच विल जनरेट 900 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका नाम है अरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट. इसपे इंडिया ने इतना करोड़ रुपीस स्पेंड किया है. This project is located on Arun River in Sankhuvasabha district of eastern Nepal. The surplus power यानी कि जो एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर जनरेट होगी that will be exported to India from Dhalkebar in Nepal to Muzaffarpur in Bihar. It will strengthen power availability in India. इससे भारत को भी मदद मिलेगी क्योंकि जो एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर जनरेट होगी वो इंडिया को भेज दी जाएगी. And it will also strengthen the economic linkages with Nepal. भारत और नेपाल के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को भी मजबूती मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. We have to name the newly discovered submerged continent in the Pacific Ocean. एक नई डिस्कवरी हुई है पैसिफिक ओशन में, एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट यानी कि समुद्र में डूबा हुआ कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है. हमें उस कॉन्टिनेंट का नाम बताना है. आंसर है जीलैंडिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट जो ग्रीन कलर का है, और इसके आसपास जो ग्रे कलर का एरिया है दिस इज जीलैंडिया. दिस इज सबमर्ज्ड इन वाटर बट दिस इज अ कॉन्टिनेंट एज पर दी साइंटिस्ट. वैसे ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर्ड एरिया है दिस इज जीलैंडिया.
Geologists have claimed discovery of new geological continent named Zealandia submerged beneath the southwest Pacific Ocean. Zealandia is around 4.5 million square kilometer land mass and is 94% underwater. यानी कि 94% of this continent is submerged. वो पानी में डूबा हुआ है. कौन सा पोर्शन विजिबल है? Only the highest points, that is न्यूजीलैंड एंड न्यू कैलेडोनिया आर विजिबल. ये देखिए, ये है न्यूजीलैंड विच इज विजिबल एंड दिस इज न्यू कैलेडोनिया, छोटा सा ग्रीन पोर्शन. दिस इज द ओनली पोर्शन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट जीलैंडिया विच इज विजिबल. बाकी सारा पानी में सबमर्ज्ड है. क्वेश्चन नंबर 38. वी हैव टू नेम द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया. इंडिया में कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पर है? आंसर है बैरन आइलैंड. According to scientists from Goa-based National Institute of Oceanography, India's only live volcano at Barren Island in the Andaman and Nicobar has become active again. एक बार फिर से ये जो डोर्मेंट वॉल्केनो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जिसका नाम है बैरन आइलैंड, वो एक्टिव हो गया है आफ्टर लाइंग डोर्मेंट फॉर 150 years. ये 1991 में भी एक्टिव हुआ था और तब से अब फिर से इरप्ट हो रहा है in small episodes of 5 to 10 minutes. Question number 39. What is the theme of World Day of Social Justice 2017? हमें World Day of Social Justice 2017 की थीम बतानी है. ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है Preventing Conflict and Sustaining Peace Through Decent Work. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. The World Day of Social Justice is observed every year on February 20 to recognize the need to promote efforts to tackle issues such as poverty, exclusion and unemployment. To mark this occasion, UN and International Labour Office, that is ILO, had organized several organizations to spread the importance of social justice. तो दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN और ILO. इन्होंने इस दिन को मनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग सेमिनार्स और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज की हैं. 2017 का थीम है प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनिंग पीस थ्रू डिसेंट वर्क. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट आउट ऑफ दीज इज यूज्ड टू मेक ग्राफीन? एक नई चीज डिस्कवर की गई है जिसके द्वारा ग्राफीन बनाया जा सकता है. वो क्या सोर्स है? आंसर है सोयाबीन. इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं. साइंटिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हैव मेड वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल. वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? ग्राफीन. कमर्शियली मोर वायबल बाय यूजिंग सोयाबीन. बड़ी आसानी से अब ग्राफीन बनाया जा सकता है क्योंकि जो सोर्स है सोयाबीन, दैट इज वेरी वायबल, दैट इज अवेलेबल. दे हैव डेवलप्ड अ नोवेल ग्राफेयर टेक्नोलॉजी विच ट्रांसफॉर्म्स सोयाबीन ऑयल into graphene films in a single step. एक ही स्टेप में वो सोयाबीन फिल्म को ग्राफीन में कन्वर्ट कर देते हैं. ग्राफीन क्या है? इट इज अ कार्बन मटेरियल दैट इज 1 atom thick. बहुत ही फाइन, बहुत ही पतला है ये ग्राफीन और ये कार्बन मटेरियल है, कार्बन की फॉर्म है. इट इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट नोन मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन. सबसे ज्यादा मजबूत चीज है ये ग्राफीन. तो जब ये इतने चीप तरीके से बन पा रहा है, इसको इजीली और बहुत ज्यादा लेवल पे यूज कर सकते हैं कमर्शियली. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? इसका आंसर है 143. इंडिया वॉज रैंक 143 आउट ऑफ 186 कंट्रीज इन द एनुअल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2017. ये इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स क्या है? It measures the degree of economic freedom in the country. हर एक देश में इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है उसको मेजर करता है ये इंडेक्स. ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएस बेस्ड कंपनी है द हेरिटेज फाउंडेशन. इस इंडेक्स की टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? हांगकांग नंबर 1 पे है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया. इंडिया के नेबर कंट्रीज में नेपाल का रैंक है 125, श्रीलंका का रैंक है 112, पाकिस्तान इज एट 141, भूटान इज एट 107 एंड बांग्लादेश इज एट 128. अफगानिस्तान का रैंक है 163 एंड मालदीव्स इज एट 157.
क्वेश्चन नंबर 42 है, वी हैव टू नेम द राइटर सिलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान अवार्ड. आंसर है सुरेंद्र वर्मा. ये एक हिंदी के स्कॉलर हैं, लिटरेचर हैं एंड प्ले राइट हैं सुरेंद्र वर्मा. इन्हें चुना गया है व्यास सम्मान 2016 के लिए. इन्होंने नॉवल लिखी है कातना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से. ये 2010 में पब्लिश हुई थी और इस नॉवल के लिए इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है. व्यास सम्मान अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन इन द ईयर 1991. क्वेश्चन नंबर 43, वी हैव टू नेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पलानी स्वामी. एडापी के पलानी स्वामी. ही इज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. He is a senior leader of the AIADMK, All India अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कज़गम. इससे पहले ये मिनिस्टर रह चुके हैं हाईवेज के एंड माइनर पोर्ट्स के जयललिता और पनीर सेल्वम की सरकार में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. The ISRO has successfully launched how many satellites in a mission? Recently ISRO ने एक लैंडमार्क अचीवमेंट की है. उन्होंने एक ही मिशन में बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है. हमें बताना है कितनी. आंसर है 104. ISRO has created history by successfully launching 104 satellites in a single mission. These were launched on board PSLV on 39th mission from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. 104 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट्स भारत की थी और बाकी सारी इंटरनेशनल कस्टमर्स की थी. भारत की जो सैटेलाइट्स हैं उनमें एक तो है अर्थ मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 2 एंड नैनो सैटेलाइट्स हैं INS-1A एंड INS-1B. जो फॉरेन सैटेलाइट्स हैं उसमें से 96 यूएस की हैं और बाकी 5 इजराइल की हैं, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, UAE रिस्पेक्टिवली. तो 96 सैटेलाइट्स यूएस की हैं और 5 में से एक सैटेलाइट इन देशों की है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. द यूनियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हृदय स्टैंड्स फॉर व्हाट? हमें हृदय का फुल फॉर्म बताना है. आंसर है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना. इसकी जानकारी देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय स्कीम ऑन 21 जनवरी 2015. ये जो स्कीम है इसका एम क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज. और कौन सी 12 सिटीज हैं जिनको अभी तक ये डेवलप कर चुके हैं? उनके नाम है अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेंकलम्मी, वारंगल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. हमें बताना है वेयर इज द 112 फुट tall statue of Lord Shiva which was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi located. ये स्टैचू कहां पर स्थित है? इसका आंसर है कोयम्बटूर. ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि जो कि 24 फरवरी 2017 को थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अनवेल्ड अ 112 फीट टॉल. आप देख सकते हैं कितना ह्यूज है ये स्टैचू. लॉर्ड शिवा का स्टैचू जो कि ईशा फाउंडेशन की यहाँ पर स्थित है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में. दिस फाउंडेशन इज फाउंडेड बाय पॉपुलर योगा गुरु जग्गी वासुदेव. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ईशा फाउंडेशन के फाउंडर जग्गी वासुदेव. और ये ऐसे ही और भी स्टैचूज भारत के अलग अलग कोनों में एस्टैब्लिश करेंगे. इस दिन पीएम मोदी ने एक बुक भी रिलीज की है जिसका नाम है आदि योगा द सोर्स ऑफ योगा विच डील्स विद योगिक साइंसेस. तो स्टैचू अनवेल करने के साथ साथ एक बुक भी रिलीज की गई है जिसका नाम है आदि योगा द सोर्स ऑफ योगा. क्वेश्चन नंबर 47. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हिल स्टेशन बाइसिकल पाथ लोकेटेड? भारत का पहला हिल स्टेशन बाइसिकल पाथ कहां पर है? आंसर है दार्जिलिंग. इंडिया का पहला हिल स्टेशन बाइसिकल पाथ यानी कि पहाड़ों में एक स्पेशल डेडिकेटेड पाथ है जिसपे आप सिर्फ बाइसिकल्स ही चला सकते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं. इट वॉज इनॉग्रेटेड इन दार्जिलिंग ऑन February 25, 2017. इसकी लेंथ है 20 किलोमीटर और
इसका एल्टीट्यूड है 2000 मीटर से ऊपर। इट रन्स थ्रू थिक फॉरेस्ट एंड द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस साइकिल रूट पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है जिसका नाम है सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तो और इस पाथ से आप दुनिया के थर्ड हाईएस्ट माउंटेन जिसका नाम है कंचनजंगा, उसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में वी हैव टू नेम द न्यू हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। इसका आंसर है राहत। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम। इट वॉज स्टार्टेड ऑन February 25, 2017 और कहां पे इनॉग्रेशन हुई है इसकी? एट द इटर्नल हार्ट केयर सेंटर हॉस्पिटल इन जयपुर। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया एज पर द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। इसका आंसर है मुंबई। ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट और इसके मुताबिक मुंबई, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज द रिचेस्ट इंडियन सिटी। ये एक साउथ अफ्रीका बेस्ड मार्केट रिसर्च ग्रुप है न्यू वर्ल्ड वेल्थ जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है और इनके हिसाब से मुंबई में 46,000 मिलियनियर्स हैं एंड 28 बिलियनियर्स हैं। मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 50, वी हैव टू नेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका आंसर है शिल्पा शेट्टी। Indian film actress, producer, former model Shilpa Shetty has been appointed as the brand ambassador for cleanliness initiative Swachh Bharat Mission by the central government. स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या है? इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करना है बाय द ईयर 2019 और इसके लिए इन्होंने एक और स्टेप लिया है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी शिल्पा शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दीज करंट अफेयर्स आर यूजफुल फॉर यू एंड फॉर मोर such videos do subscribe to our channel Success CDs Education.